شاہزر رات گئے لوٹا تو کچن سے کھٹپٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک تو بوا بنا کتنی بار کہا ہے کہ میرے لیے نہ جاگا کریں، مگر یہ سنے تب نہ۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا، پھر خیال آنے پر رکا، وہیں سے آواز دی، بوا کھانا گرم کر کے ٹیبل پر رکھ دیں، میں آ کر کھاتا ہوں۔ واپس آیا تو ٹیبل پر کھانا لگا ہوا تھا۔ کچن سے پری نمودار ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور بوا کہاں ہے؟ شاہزر نے سخت لہجے میں اسے دیکھ کر کہا۔ انہیں میں نے آرام کرنے کے لیے کوارٹر بھیج دیا ہے۔ آپ رات اتنی دیر سے آتے ہو، میں نے ان سے کہا کہ آئندہ آپ کے لیے کھانا میں ہی بنا کر سرو کروں گی۔ اس نے گلاس میں پانی ڈال کر شاہزر کے قریب رکھا۔ مجھے تمہارے احسان کی ضرورت نہیں ہے، میرے کاموں کے لیے نوکر موجود ہیں، آئندہ مجھے تم میرے کام کرتی نظر مت آؤ۔ شاہزر نے ناگواری سے کہا، میں آپ کی بیوی ہوں، نوکروں سے زیادہ شوہر کا خیال بیویاں ہی اچھے طریقے سے رکھ سکتی ہیں۔ شاہزر کے ماتھے پر شکن پڑے۔ وہ غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر شاید پری کو اپنی عزت خود ہی عزیز نہیں تھی، تو وہ کیا کر سکتا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، میں نے کہا کہ میری بیوی بن کر رہو۔ مجھے نہ کل تمہاری ضرورت تھی اور نہ آج ہے، نہ آنے والے وقت میں کبھی ہوگی، سمجھی تم؟ وہ دھاڑا تو پری ایک دم ڈر کر پیچھے ہوئی، پھر ہمت کر کے وہیں کھڑی رہی۔ وہ اس رشتے کو ہر طریقے سے بچانا چاہتی تھی۔ اپنی انا، اپنی عزت نفس کو ایک طرف رکھ کر وہ اس بندے کے سامنے جھک رہی تھی جسے اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ ہاں تو میں پہلے بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی، جا رہی تھی نا آپ کی زندگی سے، آپ جانے دیتے، پھر مجھے روکا کیوں؟ اس لیے کیونکہ آپ کے دل میں بھی میں بستی ہوں، آپ مانے یا نہ مانے یہ الگ بات ہے۔ پری نے اطمینان سے کہہ کر شاہزر کے سر پر بم پھوڑا۔ شاہزر اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھر کر کبھی پری کے قریب آیا۔ پری ڈر کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ جسٹ شٹ اپ، آج تو یہ بکواس کر لی، آئندہ مت کرنا، ورنہ میں خود سے کیا وعدہ بھول جاؤں گا۔ مجھے خود پر سختی کرنے پر مجبور مت کرو پریشے دانیال، ورنہ نہ یہ میرے حق میں بہتر ہوگا اور نہ تمہارے۔ آزادی دی تھی تمہیں یہاں سے جانے کی، اب وہ سب آزادی ختم۔ اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نکالا نا تو ٹانگیں توڑ کر ہاتھ پہ رکھ دوں گا، اور محبت اور تم سے نہیں پریشے بی بی۔ شاہزر اتنا کمزور مرد نہیں ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت کر بیٹھے۔ اب میں تمہیں اتنا مجبور کر دوں گا اپنی محبت میں کہ تم مجبور ہو کر مجھ سے اپنی محبت کی بھیک مانگو گی۔ پھر یاد رکھنا، شاہزر کی محبت تمہیں کبھی نصیب نہیں ہوگی، یہ میرا وعدہ رہا تم سے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں رکا نہیں، وہ پھر سے سب نہیں دہرانا چاہتا تھا جو وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا۔ یہ لڑکی اس کے صبر کو بہت بری طرح سے آزما رہی۔ شاہزر نے نفرت سے سر جھٹکا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اس کے پورے جسم میں آگ لگی ہوئی تھی، اور پری وہاں کھڑی اس کی نفرت سے کہے گئے الفاظ پر غور کرتی ہی رہ گئی۔ دانیال دوسرے ہی دن ثانیہ کے گھر گیا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے بیل دی تو بہت ٹائم گزرنے کے بعد بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا تو اس نے گھنٹی پر ہاتھ رکھ دیا۔ باہر گرمی بھی آج کچھ زیادہ تھی۔ کون ہے؟ آ رہی ہوں۔ ہو کیا گیا ہے؟ بندہ مصروف بھی تو ہو سکتا ہے۔ ثانیہ کے لہجے میں بیزاری تھی۔ دانیال اس کی آواز سن کر مسکرایا۔ وہ غصے میں بہت پیاری لگتی تھی۔ اس وقت بھی اس کا چہرہ دانیال کے سامنے گھوم گیا۔ ساری بیزاری خود بخود ختم ہو گئی تھی۔ کون ہے؟ میں دانیال، دروازہ کھولو، گرمی سے باہر پگھل رہا ہوں۔ معاف کیجیے گا دانیال بھائی، اماں گھر پر نہیں ہیں اور ابا بھی کام پر گئے ہیں، میں آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، ثانیہ نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ دانیال کو آگ ہی لگ گئی۔ وہ کوئی چور لٹیرا تو نہیں تھا کہ اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اس نے مشکل سے اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ دیکھو تانی، میں تم سے ہی ملنے آیا ہوں، باہر کھڑے کھڑے بات تو نہیں کر سکتا نا؟ جی آپ کو جو بھی بات کرنی ہے صبح اماں کی موجودگی میں آ کر لیجئے گا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا یہ نام نہاد پردہ، سب جانتا ہوں میں۔ اتنی ہی دودھ میں دھلی ہوتی نا تو میرے بھائی پر ڈورے نہ ڈالتی۔ دانیال نے چبا چبا کر غصے سے کہا۔ اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ ایک چھٹانگ بھر کی لڑکی نے اس کی بے عزتی کی ہے۔ ابھی بہتر ہے آپ یہاں سے چلے جائیں، میرے پاس آپ کے فضول سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اکرام سے شادی سے انکار کر دو تانیہ، نہیں تو بہت پچھتاؤ گی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے دھمکی دینے والے؟ میں ماموں جان سے آپ کے اس رویے کی شکایت کروں گی۔
शौक से करना, मगर याद रखना ये शादी करके तुम अपने साथ खुद ज्यादती कर रही हो। दानियाल ने जोर से दरवाजे को लात मारी और वहां से चला गया। पागल ना हो तो, बड़ा आया धमकियां देने वाला। सानिया ने उसकी बात को इतना सीरियस लिया ही नहीं। दानियाल ने जब से सुना था कि अब्बा ने इकराम का रिश्ता सानिया से पक्का कर लिया है, वो एक पल के लिए भी सुकून से नहीं रह सका था। उसे रह रह कर अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। दूसरी तरफ अम्मा भी गमो गुस्से से पागल हो रही थी। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। शादी की तैयारी भी शोहर के डर से बेदिली से करती रही थी। अभी भी शॉपिंग करके आई थी। आज इकराम भी घर पर मौजूद था। अम्मा को थका देखकर वो उनके लिए गर्मा गर्म चाय बना लाया। वो जानता था अम्मा उसके फैसले से खुश नहीं है। आज उसे मौका मिला था कि वो उन्हें मना ले। जानता था कि अम्मा उससे बहुत प्यार करती है, वो मान ही जाएगी, मगर वो नहीं जानता था कि अम्मा उसकी खुशी के लिए चुपचाप सब बर्दाश्त तो कर सकती है, मगर उस लड़की को कभी भी दिल से कबूल नहीं करने वाली थी। अम्मा ये लें गर्मा गर्म चाय, मैंने अपने हाथों से बनाई है। उसने नीचे अम्मा के कदमों के सामने काउच पर बैठकर उन्हें चाय का कप दिया, जो अम्मा ने नाराजगी से उसके हाथ से लेकर सोफे के साइड टेबल पर रख दिया। रहने दो बरखुरदार ये मस्के, किसी और के साथ जाकर लगाना। इतना ही माँ का ख्याल होता तो इतना बड़ा फैसला माँ से पूछे बिना ना करते। उन्होंने नाराजगी से कहा, अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, अगर आप मेरे इस फैसले पर खुश नहीं तो मैं अभी अब्बा को मना कर देता हूँ। मैंने तो आप दोनों के सामने अपनी पसंद रखी थी ना। अब्बा ने कहा वो पहले मेरे साथ जाकर फुफ्फो से रिश्ते की बात करेंगे। आपने उस टाइम कुछ भी नहीं किया और ना ही कुछ कहा। मुझे तो यही लगा कि आप भी इस रिश्ते पर राजी हैं। इकराम ने अम्मा की गोद में सर रखकर लाड से कहा तो अम्मा के दिल को कुछ हुआ। अभी वो इनकार भी कर लेता तो उनके शोहर कभी भी इनकार नहीं करते, इसलिए उन्होंने सोच लिया ये शादी तो वो होने देंगी, मगर इसके बाद सानिया की जिंदगी हराम कर देंगी। अम्मा ने प्यार से उसके बालों में हाथ चलाया। इकराम, मुझे गलत मत समझना। हाँ, मैं इस रिश्ते के लिए दिल से राजी नहीं थी। अभी सोचा तो मुझे अपना फैसला गलत लगा। शादी तो तुम्हारी करनी ही थी। अच्छा है अपने घर की बेटी ही आएगी यहाँ। अम्मा ने चालाकी से कहा। इकराम तो माँ की इस बात पर निसार ही हो गया। फिर अल्लाह अल्लाह करके सानिया इकराम की बीवी बनकर उस घर में आ गई। इकराम की मोहब्बत ने सानिया को एक नए जहां में ही पहुंचा दिया था। उसे तो अम्मा और दानियाल का खिंचा खिंचा रवैया भी नजर नहीं आ रहा था। अब्बा तो अपनी पहली और लाडली बहू के नाज उठाते ही नहीं थक रहे थे। एक दिन अब्बा सुबह काम पर गए और वापस उनकी लाश आई थी। उनका रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। उसके बाद घर का माहौल अचानक ही बदल गया। इकराम तो अब्बा के शुरू किए नए कारोबार के चक्कर में कराची चले गए। सानिया को वो अम्मा के पास ही छोड़ गया। वो अम्मा को अकेले छोड़कर नहीं जा सकते थे। दानियाल भी उसकी शादी के बाद कम कम ही घर में नजर आने लगा था। इकराम के कराची जाने के बाद सानिया की जिंदगी का एक तल्ख बाब शुरू हुआ था। आज चांद बहुत उदास था। वो लॉन में आकर कुर्सी पर बैठी और पाँव भी कुर्सी पर ही रखे। उसका दिल खाली खाली था, आंखें वीरान थी। इस जिंदगी से क्या, उसकी जिंदगी क्या से क्या हो गई थी। वो तो सोच सोच कर ही पागल हो रही थी। वो जानती थी कि पापा और शाहजर एक दूसरे से नफरत करते हैं, मगर वो आज तक उस नफरत के पीछे छुपे राज को चाह कर भी नहीं जान सकी थी। मम्मा की कितनी बार कॉल्स आई थी। उन्होंने कितना समझाया था कि वो वापस आ जाए, उसके पापा सब ठीक कर लेंगे, मगर वो नहीं मानी। पापा ने भी फिर उससे बात नहीं की थी। उसे उस बात का भी अफसोस था, मगर अब वो इस घर से उस वक्त तक नहीं जाना चाहती थी जब तक वो शाहजर के माजी के उस तल्ख बाप को जानकर उसे उस दर्द से निकाल ना लेती। आज हस्बे मामूल शाहजर घर पर ही मौजूद था। वो हॉल में बैठा अखबार पढ़ रहा था। परी अमूमन उस वक्त ही रूम से बाहर निकलती थी जब शाहजर घर से ऑफिस के लिए निकल नहीं जाता था। उस रात के बाद दोनों का आमना सामना नहीं हुआ था। अभी भी वो नीचे आई, हॉल में शाहजर पर नजर पड़ी तो वहीं से वापस जाने लगी कि शाहजर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जो किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कह कहा लगाकर हंस रहा था। परी हैरान होकर वहीं रुक गई। उसे वो कह कहा अपने कानों का धक्का लगा। शाहजर तो कभी जिंदगी में खुलकर नहीं मुस्कुराए थे, कह कहा कहाँ लगा रहे थे। परी को हैरत हुई कि हिटलर का जानशीं इस तरह खुश भी रहता है। वो तो बस औरों का खून खुश्क करता रहता था। तुम सच कह रही हो ना? तुम वाकई में पाकिस्तान आ रही हो?
वो बेयकीनी से बोला। शाहज़र ने थोड़ा सा मुड़कर परी को देखा जो वहाँ स्टैचू बनी खड़ी थी। शाहज़र के दिमाग में शैतानी ख्याल आया और उसके चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। ऐसे है तो ऐसे ही सही प्रीशे साहिबा, सनम तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे यहाँ आने पर कितना खुश हूँ। मेरा बस नहीं चल रहा 1 हफ्ते की दूरी को पल भर में ख़त्म कर दूँ और तुम्हें अपने रूबरू देख सकूँ। शाहज़र के लहजे में बेकरारी थी। परी के दिल को कुछ हुआ था। उसमें मुड़कर जाने की हिम्मत भी बाकी ना रही थी। न जाने उसकी बात पर फ़ोन की दूसरी साइड पर मौजूद हस्ती ने क्या जवाब दिया था, मगर शाहज़र का कहका पहले से भी ज़्यादा सुनाई दिया था और बेइंतहा था। नहीं, वो क्या कह सकती है, मेरा उसका कोई रिश्ता नहीं है। वो यहाँ बेकार चीज़ों की तरह एक कोने में पड़ी रहती है। उसका वजूद भी देखना मुझे गवारा नहीं है। तुम तो जानती हो मैं उससे कितनी नफ़रत करता हूँ। खैर, उसका यहाँ क्या जिक्र। मेरा मूड ख़राब करने का कोई इरादा नहीं है उस लड़की की बातें करके। बस तुम जल्दी से तैयारी पूरी करो। मैं सारे काम 1 हफ्ते में ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं और तुम दोनों मरी की खूब सैर करेंगे। एक एक जगह दिखाऊंगा तुम्हें मैं। परी की हिम्मत यहीं तक थी। उसने भागकर सीढ़ियां तय की और कमरे में आकर वहीं ज़मीन पर बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। अल्लाह जी, आखिर क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ही ऐसा हुआ? मैंने तो उसे तुझसे मांगा था, उसे मुझे दे दे। अल्लाह, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। शाहज़र मत करे मेरे साथ ऐसा। मैं कैसे आपकी बेवफाई सह पाऊंगी? मैंने तो अपना सब कुछ बहुत पीछे छोड़ दिया है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आपकी मोहब्बत में। मुझे खुद से दूर मत करें प्लीज़ अल्लाह जी, शाहज़र को मुझे दे दें। वो गिड़गिड़ा कर अल्लाह से अपने लिए शाहज़र को मांग रही थी। शाहज़र ने उसके जाते ही फ़ोन कान से हटाया। शाहज़र ने परी को सीढ़ियों से नीचे आते देख लिया था। सनम का फ़ोन तो उसके नीचे पहुंचने के बाद कब का बंद हो चुका था। ये सब तो वो परी को दुख देने के लिए कह रहा था जो ज़बरदस्ती उसके घर में, उसकी ज़िंदगी में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। अब शाहज़र को यही रास्ता उसे उस घर से जाने के लिए ठीक लगा था। वो उसके वजूद को चाह कर भी मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था अपने घर में। शाहज़र के चेहरे पर उस वक्त बला की संजीदगी थी। कुछ वक्त पहले की हंसी का नामो निशान तक नहीं था उसके चेहरे पर। सुनिए, शाहज़र ने मुड़कर सवालिया नज़रों से उसे देखा। क्या है? एक तो ये लड़की भी ना जाने किस मिट्टी की बनी है, रोज़ मुंह उठाए बेइज्जत होने चली आती है। शाहज़र ने दिल में सोचा, आप कहीं जा रहे हैं? नहीं, कहीं से वापस आ रहा हूँ, उसने दांत चबा कर कहा। वो मेरा मतलब वो नहीं था, परी ने शर्मिंदगी से झिझकते हुए कहा। जो भी मतलब है जल्दी कहो, मुझे देर हो रही है। उसने हाथ पर बांधी घड़ी को देखकर कहा। उसे वाकई में देर हो रही थी। वो मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है तो प्लीज़ मुझे ले जाएं, उसने जल्दी जल्दी कहा। कहीं वाकई वो उसकी बात सुने बगैर ही ना चला जाए। व्हाट? क्या कहा तुमने? वेट अ मिनट, तुमने अभी अभी जो कहा, क्या वो तुमने अपने होशो हवास में ही कहा है ना? शाहज़र ने आंखें खोलकर फिर बंद की जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो। फिर तंजिया मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आकर गुजर गई। मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाऊं? मैं तुम्हारा ड्राइवर लगा हुआ हूं क्या? सुबह सुबह आ गई हो मेरा दिमाग ख़राब करने के लिए। परी वापस मुड़ी। अभी पहली सीढ़ी पर कदम रखा था कि शाहज़र उसे पुकार बैठा। प्रीशे, अगर तुम जाना चाहो तो मैं ड्राइवर को कुछ टाइम में भेज दूंगा। अब के उसके लहजे में थोड़ी नरमी थी। नहीं, रहने दें, मुझे नहीं जाना। क्या कहा? मैं यहाँ तुम्हारे बाप का नौकर लगा हुआ हूँ जिसे तुम ऑर्डर सुना रही हो? वो फिर से एकदम आपे से बाहर हुआ और फासला तय करता उसके करीब आया और झटके से उसका हाथ खींचकर उसे अपने रूबरू किया। व्हाट? क्या कहा तुमने? वेट अ मिनट, तुमने अभी अभी जो कहा, क्या वो तुमने अपने होशो हवास में कहा है ना? शाहज़र ने आंखें खोलकर फिर बंद की जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो। फिर तंजिया मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आकर गुजर गई। मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाऊं? मैं तुम्हारा ड्राइवर लगा हुआ हूँ क्या? सुबह सुबह आ गई मेरा दिमाग ख़राब करने के लिए। परी वापस मुड़ी। अभी पहली सीढ़ी पर ही उसने कदम रखा था कि शाहज़र उसे पुकार बैठा। प्रीशे, अगर तुम जाना चाहो तो मैं ड्राइवर को कुछ टाइम में भेज दूंगा। अब के उसके लहजे में थोड़ी नरमी थी। नहीं, रहने दें, मुझे नहीं जाना। क्या कहा? मैं यहाँ तुम्हारे बाप का नौकर लगा हुआ हूँ जैसे तुम। क्या कहा?
मैं यहाँ तुम्हारे बाप का नौकर लगा हुआ हूँ जिसे तुम ऑर्डर सुना रही हो। वो फिर से एकदम से आपे से बाहर हुआ था और फासला तय करता, अब बोलो क्या कह रही थी तुम? मुझे सुनाई नहीं दिया। शाहजर, मैंने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं अपना क्रेडिट कार्ड घर भूल आई हूँ, इसलिए आपसे कहा, उसने वजाहत दी। शाहजर का गुस्सा एकदम से और ज्यादा हुआ। तुम्हें क्या लगता है मेरे घर में रहकर तुम अपने बाप के पैसों के रोब जमाओगी यहाँ पर? परी हक्का बक्का रह गई। ये बंदा कुछ भी ठीक नहीं सोच सकता था। शाहजर ने उसका हाथ छोड़ा, वॉलेट से अपना क्रेडिट कार्ड निकालकर उसका हाथ पर रखा। आइंदा मुझे उस शख्स के पैसों का जिक्र करती नजर ना आओ तुम, समझी? ये क्रेडिट कार्ड रखो, चाहे तो सारा अकाउंट खाली कर देना, मगर इन पैसों का जिक्र दोबारा मत करना, मैं ड्राइवर को भिजवा दूंगा। वो कहकर चला गया। अजीब इंसान है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। खैर अब मैं भी आपका क्रेडिट कार्ड ऐसा इस्तेमाल करूंगी कि ऐसी ऑफर देने से पहले 1000 बार सोचेंगे। आज सुबह से ही मौसम खराब था, बारिश के होने के इम्कानात ज्यादा थे। सानिया सुबह से किचन में लगी हुई थी। दानियाल के कुछ दोस्त आ रहे थे रात के खाने पर और दानियाल ने खूब सारे मुश्किल खाने बनाने के लिए कहा था। दूसरी तरफ अम्मा को लगा था कि सर्दी का मौसम है, आज बारिश हुई तो फिर कपड़े धोना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सारे घर के कपड़े, बेडशीट, पर्दे सारे उतार कर धोने का हुक्म था। अम्मा कल लगा लूंगी मशीन, आज दानियाल भाई के दोस्त आ रहे हैं ना, तो उनके लिए खाना तैयार करना है, उसने आजिज़ी से कहा। क्या कहा तुमने कमबख्त? तुम अब मुझे सिखाओगी कि क्या करना है और क्या नहीं? अम्मा जलाल में आ गईं। उन्होंने उठकर सानिया को बालों से पकड़ा। पहले मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, फिर उसके बाद मेरे शोहर को खा गई और अब मुझे इस घर के तौर तरीके सिखाओगी तुम? उन्होंने एक झटका देकर उसके बालों को और मजबूती से पकड़ा और उसके बाद मुक्कों और थप्पड़ों की बौछार कर दी। अम्मा खुदा का वास्ता है मुझ पर रहम करें, मैं आपके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इतना जुल्म मत करें। वो गिड़गिड़ाते हुए रोई, खुदा के वास्ते दिए, मगर अम्मा पर कोई भी बात असर नहीं कर रही थी। आज तो उन्होंने अपने अंदर का सारा गुबार ही निकाल लिया। दानियाल कब का दरवाजे पर खड़ा तमाशा देख रहा था। सानिया की नज़र उस पर पड़ी तो उसे भी मदद करने के लिए पुकारती रही, मगर वो बेज़मीर शख्स वहीं खड़ा उसे मार खाते देखता रहा। जब अम्मा मार मार कर थक गईं तो वो उसे वहीं छोड़कर कमरे से निकल गईं। दानियाल उसके पास आया। अफसोस, बहुत मारा ना अम्मा ने, बहुत लगी होगी तुम्हें। कहा था ना मत करो ये शादी, तब मान लेती तो आज ऐसा दिन ना देखना पड़ता। सानिया ने एक दुख भरी नज़र अपने सामने खड़े इंसान पर डाली। ये तस्वे बाद में बहा देना, अभी उठकर मेरे दोस्तों के लिए खाना तैयार करो, कोई कमी रही तो अम्मा से भी बुरी तरह पेश आऊँगा। वो वार्न करता लंबे लंबे डग भरता उसकी नज़रों से ओझल हो गया। सानिया ने अपने दुखी जिस्म को बहुत मुश्किलों से संभाला, फिर पूरा टाइम बेहिस बनी काम में मसरूफ़ रही। वो तो अपने घर की इकलौती बेटी थी। अम्मा ने घर के सारे काम बहुत सख्ती से सिखाए थे, मगर उन्होंने मार खाकर उसे बर्दाश्त करना नहीं सिखाया था। वो रात गए कमरे में लौटी, उसने एक कागज़ पेन लिया और उस पर खुद पर होने वाले सारे जुल्म लिखती रही। वो सब कुछ जो किसी से नहीं कह सकती थी। वो इकराम तो उससे बहुत दूर था, वो चाहकर भी उसे ये सब नहीं बता सकती थी। उसने वो कागज़ बहुत एहतियात से संभाल कर अलमारी में रखा। वो नहीं जानती थी कि आने वाले वक्त में ये सारे लफ्ज़ किसी के लिए कितने तकलीफ़ दे होंगे। दिन बेकैफ गुजर रहे थे, वही सुबह वही रातें, वो इस सारी रूटीन से उकता गई थी। सुबह शाहजर के जाने के बाद वो बुआ को बताकर बाहर निकल गई। चलते चलते वो बहुत आगे निकल गई थी। अभी तो सुबह का आगाज़ हुआ था, इसलिए वो बेफिक्र होकर घूम फिर रही थी। उसका रुख मुखालिफ सिमत में था। सुबह से दोपहर हो गई, उसका घर जाने का दिल नहीं कर रहा था। कल ही उसे शाहजर ने कुछ पैसे दिए थे, वो साथ में चंद नोट उठा लाई थी। अभी उसने एक ढाबे पर बैठकर नान निहारी खाई, फिर मज़ेदार सी गर्मा गर्म चाय पी और फिर से उन पहाड़ी रास्तों पर चलने लगी। उसे वक्त का ख्याल नहीं रहा था। वो उन हसीन लम्हों को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहती थी, मरी की खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद करना चाहती थी। पता नहीं फिर ये वक्त आए ना आए। उसने उस वक्त खूबसूरत सा कढ़ाई वाला पिंक सूट पहन रखा था, साथ शाल को अच्छे से ओढ़ रखा था, बालों को नरमी से जूड़े की शक्ल में बांधा था। दाएं हाथ पर प्यारी सी घड़ी बंधी थी, दूसरे हाथ में छोटा सा क्लच था जिसमें मोती जड़े थे।
शाहज़र शाम गए घर लौटा। शाहज़र को देखकर परेशानी से बुआ ने कहा, क्या हुआ बुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? बुआ ने शाहज़र को परेशानी से देखा। क्या हुआ बुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? और इस तरह दरवाजे पर खड़े होकर क्या कर रही हैं? वो भी शाम गए। उसने एक नज़र परेशान खड़ी बुआ को देखा। बेटा वो क्या बात है बुआ, खुल कर करें, मुझे परेशानी हो रही है। अब की बार शाहज़र को भी कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। वो बेटा, परी बेटी तुम्हारे जाने के बाद ही निकल गई थी। कह रही थी कि मेरा दिल बहुत तंग है, कुछ वक्त बाहर की ताज़ा हवा खा कर आती हूँ, मगर अभी तक वापस नहीं आई। बुआ ने रोहानसी होकर कहा। क्या मतलब, कहाँ गई है वो बुआ? उसे तो यहाँ के रास्ते भी नहीं पता, और सुबह से शाम हो गई, उसका कोई अता पता नहीं है। आपने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। कहाँ गई होगी वो? यहाँ तो चारों तरफ घना जंगल है। मुझे आपसे इस लापरवाही की उम्मीद नहीं थी बुआ। शाहज़र ने एक अफसोस भरी नज़र बुआ पर डाली, फिर अंदर आकर मोबाइल से उसका नंबर मिलाने लगा, जो बन जा रहा था। अब सही मायनों में परेशान होने की बारी शाहज़र की थी। उसने कोट उतार कर सोफे पर उछाला और आस्तीन और शर्ट की आस्तीनें फोल्ड की, शर्ट के ऊपरी बटन खोल दिए और हॉल कमरे में इधर से उधर टहलने लगा। बार बार फ़ोन ट्राई किया, मगर वो मुसलसल बन जा रहा था। उसने उजलत में साइड टेबल पर पड़ी गाड़ी की चाबी उठाई। बुआ, मैं परी को ढूंढने जा रहा हूँ, आपको कोई भी इत्तला मिले मुझे फ़ौरन बता दीजिएगा। उसने सारा आसपास का इलाका ढूंढ डाला, परी का कोई नामो निशान नहीं मिला। उसने साइड पर गाड़ी रोकी और सर गाड़ी की सीट पर रखा। वो उस वक्त बहुत परेशान था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो किसी तरह परी को अपने रूबरू ले आए। उसने एक हाथ से अपना सर दबाया। कहाँ चली गई हो परी, मैं कहाँ ढूंढूं तुम्हें? तुम ना मिली तो क्या जवाब दूंगा मैं खुद को कि तुम तो मेरी जिम्मेदारी थी। फिर मैंने कैसे तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। वापस आ जाओ परी प्लीज़, मेरे दिल को करार नहीं आ रहा, लौट आओ ना। उसका फ़ोन बजा। उसने जल्दी से देखा, अनजान नंबर था। उसने कान से लगाया। अगले की बात सुनकर उसने मोबाइल वापस रखा और गाड़ी मेन रोड पर डालकर तेज़ रफ्तारी से चलाई। वो उस वक्त उड़कर वहां पहुंच जाना चाहता था। बहुत रैश ड्राइविंग करने के बाद वो मतलूबा जगह पहुंचा। वहां से आगे का सफ़र उसे पैदल करना था, क्योंकि जो जगह उसे बताई गई थी वो पहाड़ के ऊपर बनी थी। वहां गाड़ी का जाना मुश्किल था। वो जल्दी जल्दी वहां पहुंचा। घर बाहर से ही खस्ता हाल था। उसने दस्तक दी। थोड़ी देर बाद कोई ज़ईफ़ सी औरत बाहर निकली। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहज़र, मेरी बीवी गालिबन आप ही के घर में है। शायद मुझे यही पता दिया था उसने। हाँ हाँ बेटा, वो यही है, आप आओ अंदर। वो बहुत घबराई हुई थी, अभी भी रो रही है। शुक्र है बेटा आप आ गए। वो उसे लेकर अंदर दाखिल हुई। घर अंदर से भी छोटा सा था, मगर साफ सुथरा था। परी ने उसे देखा तो खुद पर इख्तियार न रख पाई। भागकर शाहज़र के सीने में मुंह छुपाकर रोने लगी। शाहज़र उस हमले के लिए बिल्कुल तैयार न था, तो थोड़ा सा लड़खड़ाया। शाहज़र, मैं बहुत डर गई थी। शुक्र है आप आ गए, मुझे घर का रास्ता भी याद नहीं रहा, परी ने रो कर बताया। शाहज़र ने उसे कंधे से पकड़कर धीरे से खुद से अलग किया। परी एकदम होश में आई और शर्मिंदगी से शाहज़र को देखा। उसका चेहरा किसी भी किस्म के जज्बात से आरी था, बिल्कुल स्पाट। एक गहरी और चुभती हुई निगाह उसने परी पर डाली। परी ने उसे देखा, जो हमेशा की तरह आज भी बहुत हैंडसम लग रहा था। चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी उसके चेहरे को हमेशा की तरह खूबसूरत बना रही थी। बाल बिखरे हुए माथे पर पड़े थे, आंखों में थकन उतरी हुई थी। शर्ट के बाजू ऊपर को फोल्ड किए, ऊपरी बटन खुले हुए थे। शाहज़र ने उसे नापसंदीदगी से देखा। परी ने जल्दी से नज़रें चुरा ली। शाहज़र ने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें ज़बरदस्ती कुछ पैसे थमाए और परी को हाथ से अपने पीछे आने का इशारा किया। परी भी उन सब से मिलकर उसके पीछे हो ली। पूरा रास्ता शाहज़र सपाट चेहरे के साथ ड्राइविंग करता रहा। परी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे अपनी सफाई में कुछ कह सकती। उसने नज़रें अपने हाथों पर जमा ली। गाड़ी घर के गैराज में पार्क की, फिर उतरकर परी की जानिब घूमा, जो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल रही थी। शाहज़र ने उसका हाथ पकड़कर बाहर खींचा और उसे सोचने का मौका दिए बगैर अपने साथ घसीटकर ऊपर अपने कमरे में ले गया और सोफे की जानिब झटका दिया। वो सीधी सोफे पर जा गिरी। किसकी इजाज़त से निकली थी तुम घर से? इतना बड़ा रिस्क किस बलबूते पर लिया तुमने? शाहज़र का गुस्सा सातवें आसमान को पहुंचा हुआ था।